Good morning, students. So, today we are going to start our next part of capacitance, that is, what will happen to the capacitance of any parallel plate capacitor when we insert a dielectric slab in between its plate. Okay, so in our last lecture, we had already discussed that if we want to calculate the capacitance of any parallel plate capacitance, then it comes out to be C is equal to epsilon naught A by D. ठीक है, it is the formula of capacitance of any parallel plate capacitor. ठीक है, when we have air in between its plate. ठीक है, suppose this is your parallel plate capacitor having capacitance C, and D is the separation between the plates. Then in our previous lecture we had calculated that the capacitance of this parallel plate capacitor comes out to be epsilon naught A by D, where epsilon naught is the absolute permittivity, A is the area of the plate, and D is the separation between these plates. Okay, so in last lecture we had already calculated this formula, but this is the formula of capacitance of this parallel plate capacitor. ठीक है, when we have air, ठीक है, or vacuum, or we have a free space in between its plate. ठीक है, remember that we have a free space in between its plate. When we have a free space or air or vacuum between the plates of this capacitor, then the capacitance comes out to be epsilon naught A by D. ठीक है, now again today we have to calculate the capacitance of this parallel plate capacitor, but in this case we have to place a dielectric slab. ठीक है, in the previous lecture we had already discussed that what is the meaning of dielectric slab. ठीक है, और what is the meaning of polar dielectric, what is the meaning of non-polar dielectrics. ठीक है, so in this case you have to find out the capacitance of again this capacitor, but this time we don't have air in between the plates, but we have to place some dielectric slab or some dielectric material in between the plates of this capacitor. ठीक है, when we are placing a dielectric in between the plates of this capacitor, then we have to calculate the capacitance. Then what is the new capacitance of the capacitor. ठीक है, तो उसकी नई capacitance क्या बनेगी. इन द लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था, कैपेसिटर लिया था लेकिन उसके बीच में एयर प्लेस की थी, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये आता है. नाउ इन दिस केस हमें क्या चीज़ करनी है कि वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना है जैसे ये लिया था, बट इन दिस केस हम क्या चीज़ प्लेस करेंगे, वी आर प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनकी प्लेट्स के बीच में, तो नई कैपेसिटेंस क्या आएगी. ठीक है, सिर्फ हमने ये देखना है कि व्हेन वी आर प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द प्लेट्स, देन द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस और इट रिमेन सेम. ठीक है, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि वो इंक्रीज हो जाएगी कैपेसिटेंस, डिक्रीज हो जाएगी या सेम रहेगी जब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे. ठीक है, तो अगर विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटेंस ये है, तो विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने कैपेसिटेंस निकालनी है. ठीक है, व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, फिर हम उस कैपेसिटेंस का कंपैरिजन करेंगे इसके साथ कि क्या वो नई कैपेसिटेंस की वैल्यू इसके बराबर है. अगर सेम आएगी तो हम बोलेंगे कैपेसिटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता डाइलेक्ट्रिक स्लैब की इंट्रोडक्शन से. अगर नई कैपेसिटेंस इससे ज़्यादा आ जाए तो ऑब्वियसली बात है डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. और अगर कम आएगी इसकी वैल्यू तो इसके साथ कंपैरिजन करेंगे, तो कैपेसिटेंस अगर डिक्रीज हो जाएगी इट मीन्स, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंट्रोडक्शन से कैपेसिटेंस पे इफेक्ट पड़ता है. सिंपल सी बात है, हमने सिर्फ यही चीज़ देखनी है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंट्रोडक्शन से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है. ठीक है, एज कम्पेयर टू जब उसके बीच में क्या चीज़ रखी होती है, हमने एयर रखी होती है. ठीक है, तब उसकी कैपेसिटेंस के कंपैरिजन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब की प्रेजेंस जो है वो उसकी कैपेसिटेंस को कितना अफेक्ट करती है. ठीक है, दैट इज़ योर टुडे लेक्चर. सो this is our today's lecture, that is capacitance of a parallel plate capacitor when a dielectric slab is inserted in between the plates, or the effect of dielectric on the capacitance. ठीक है, so in the first part what we have taken, we have this parallel plate capacitor. ठीक है, we are giving a charge plus charge to plate this. ठीक है, and because of induction there is a production of negative equal charges. ठीक है, और ग्राउंड किया हुआ आपको पता है वो हम नीचे अर्थ कर देते हैं. एंड द सेपरेशन बिटवीन दीज प्लेट्स इट्स डी.
लेट द एरिया ऑफ दिस प्लेट इज ए, सिमिलरली सेकेंड का एरिया भी क्या होगा, ए ही होगा. When we are giving some kind of charges over the plates, then we know that there is a surface charge density. ठीक है. Now plus minus sigma, let plus sigma and minus sigma be the surface charge density of this plate. ठीक है, वो surface charge density है. Now consider capacitor of plate area A having a surface charge density. We are giving some kind of charges, so this plate have some surface charge density. So the surface charge density of this plate is sigma and the separation between these two plates is d. ठीक है. When we are giving a charge to these plate, then we see that there is a production of electrical field, because whenever we have two plates having equal and opposite charges distributed over its area, then there is a production of electrical field, and electrical field started from positive and it start move towards the negative. Suppose that is the electrical field E naught. ठीक है. E naught is the electrical field between the plates capacitor. ठीक है. कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में ई नॉट जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है. ठीक है. और एक्सटर्नल फील्ड जो हमने अप्लाई की. सो द इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, in this region and in this region the electrical field is 0, but inside the plate we know that the formula of electrical field is sigma by epsilon naught. So the sigma is, this electrical field is because of these charges, and these charges surface charge density is sigma. So E naught is equal to sigma by epsilon naught. This is your equation number 1. ठीक है. Now you have to calculate the value of sigma. So sigma is the charge upon area. ठीक है. Suppose over these two plates we are giving a charge q. Q is the charge over these plates, plus q is the charge on this plate, and minus q be the charge on this plate. Then sigma is equal to charge upon area. So the charge is q over the area A. So sigma become q by A. ठीक है. Then equation number 1 become, put the value of sigma, then E naught q by epsilon naught. This is the value of electrical field between the plates of the capacitor. ठीक है. It is very simple formula. ठीक है. सारे के सारे हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़े हैं. तो E नॉट बिकम Q बाय A एप्सिलॉन नॉट. सो हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले हमने इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में इनिशियल कैपेसिटेंस निकालनी है. अभी मैंने इन प्लेट्स के बीच में क्या रखा है, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाली है, सिर्फ इनके बीच में वी आर कंसीडरिंग अ फ्री स्पेस. तो हमने सबसे पहले निकालना है कि जब हमारे पास प्लेट होती है तो उसके बीच में जब हम एयर रखते हैं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनता है. ठीक है. पहले हम वो निकालेंगे, फिर सेकेंड केस में हम इसमें डाइलेक्ट्रिक डालेंगे और फिर कैपेसिटेंस निकालेंगे. ठीक है. फिर वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ जो कैपेसिटेंस आएगी उसका कंपैरिजन हम एयर वाली कैपेसिटेंस के साथ करेंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क पड़ता है जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे. तो इफेक्ट तो हम तब देखेंगे ना जब हमें पुरानी चीज़ पता हो. अगर हमें इनिशियल कैपेसिटेंस पता है कि एयर के साथ कितनी कैपेसिटेंस होती है, फिर बाद में डाइलेक्ट्रिक के साथ जो कैपेसिटेंस है अगर वो मेरे पास वैल्यू आ जाए तो उस वैल्यू का कंपैरिजन हम एयर वाली कैपेसिटेंस के साथ करेंगे. ठीक है. फिर हम देख सकते हैं कि इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या सेम रह रही है. ठीक है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस में कर रहे हैं व्हेन देयर इज अ फ्री स्पेस बिटवीन दीज प्लेट्स. तो हमने कैपेसिटेंस निकालनी है. तो आपको पता है कैपेसिटेंस होती है, ये फॉर्मूला निकाला हमने. ठीक है. सो द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वी हैव अ फ्री स्पेस. तो मैंने इसको आप इनिशियल भी लिख सकते हैं या सी नॉट भी लिख सकते हो. ठीक है. सी नॉट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन there is a free space between its plate. ठीक है. We have already calculated the formula epsilon naught A by D, where A is the plate area, D is the plate separation. ठीक है. So it is a formula of initial capacitance when we have a air in between its plate. Okay. So I hope you can understand. Now in the second case, what we will do, again we have this parallel plate capacitor. Initially I have distributed 4 charges ना. तो आपने सेकंड केस में भी आपने 4 ही चार्जेस रखने हैं. प्लेट की चार्जेस पे कोई फ़र्क नहीं है. आपने जितने चार्जेस इनिशियल स्टेज पे दिए थे एयर के साथ, अब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये रेड पेन के साथ जो मैंने बनाया ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है. ठीक है. ये क्या चीज़ है आपके पास गिवन, इट इज़ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब. ठीक है. तो प्लेट्स के चार्जेस में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इट विल रिमेन सेम. तो यहाँ पे आप 4 चार्जेस बनाएंगे. ठीक है. द इलेक्ट्रिकल फील्ड तो इन चार्जेस की वजह से ही थी, तो चार्जेस तो सेम ही है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी ई नॉट ही रहेगी, प्लेट एरिया भी सेम रहेगा. अब आपने क्या चीज़ किया, इंट्रोड्यूस कर दिया डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस मेरे पास टी है प्लेट्स के बीच में.
अब आप देखेंगे कि कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अब आपको नई कैपेसिटेंस निकालनी है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। किसकी निकालनी है कैपेसिटेंस? प्लेट की। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की नहीं निकालनी है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में हम चार्ज स्टोर थोड़े ना करते हैं। कैपेसिटेंस क्या चीज़ होती है? किसी भी चीज़ के अंदर आप कितना चार्ज स्टोर करके रख सकते हैं। तो चार्ज तो हमने प्लेट्स के बीच में करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में। तो कैपेसिटेंस आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की ही निकालनी है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/C। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो प्लेट की जो चार्जेस है उस पर थोड़े ना कोई फ़र्क पड़ रहे हैं। प्लेट के जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के चार्जेस है वो तो सेम ही रह रहे हैं। तो अगर इनिशियली आपने चार्ज क्यू लिया है प्लेट्स के ऊपर, तो जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालोगे तभी भी प्लेट्स के चार्जेस क्यू ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, प्लेट्स के चार्जेस सेम, तो ये तो सेम ही रहा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन पोटेंशियल अब इन चेंज होगा कि सेम रहेगा वो हमें नहीं पता है। तो हमने क्या चीज़ निकालनी है? अगर नई कैपेसिटेंस निकालनी है इसकी, तो इसकी नई कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला Q/V है। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये आपने ये वाला फॉर्मूला भी लास्ट लेक्चर में हमने इसी से निकाला था, ड्राइव किया था। तो इस केस में हमने देखा कि प्लेट्स के चार्जेस पे कोई फ़र्क नहीं है, ये सेम रहेगा। लेकिन अब इसका हमें पता नहीं है कि V में कुछ चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट वी वांट टू कैलकुलेट दिस V। ठीक है, we will, when we get the value of V, then we can calculate the capacitance of this parallel plate capacitor। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के साथ तब इसकी कैपेसिटेंस आएगी। अब हमारा सारा फोकस इस पे रहेगा। ठीक है, तो अब आपको पता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब आप इंट्रोड्यूस करवाते हो, लास्ट लेक्चर में आप देखना, तो वहाँ पे चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे क्योंकि प्लस अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ से प्लस आ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेते हो तो उसके अंदर चार्जेस जो होते हैं वो बहुत नेग्लिजिबल होते हैं। तो जब भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जब चार्जेस सेपरेट होते हैं तो एक्सटर्नल चार्जेस और डाइलेक्ट्रिक के अंदर के चार्जेस कभी बराबर नहीं रखना। ठीक है, बराबर कब होते हैं? जब हम कंडक्टर प्लेस करते हैं। ठीक है, तो बाहर की इलेक्ट्रिकल फील्ड और अंदर की इलेक्ट्रिकल फील्ड बराबर होती है। तो बाहर की इलेक्ट्रिकल फील्ड आपने 4 चार्जेस की वजह से बनाई है। तो अगर अंदर भी आप 4 ही चार्जेस बना दोगे तो वो डाइलेक्ट्रिक नहीं होगी, वो क्या होगा? वो कंडक्टर होगा। क्योंकि कंडक्टर के अंदर बाहर की इलेक्ट्रिकल फील्ड और अंदर की इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है E0 और अंदर वाली इलेक्ट्रिकल फील्ड दे आर इक्वल। तो वो कैंसिल आउट करते हैं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होती। लेकिन इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक we see that the number of charges are very negligible or very small, therefore the charges separate तो होते हैं लेकिन उनका नंबर बाहर वाले इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ के कम होता है। तो यहाँ पे अगर आपने 4 चार्जेस बनाए हैं तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर 4 से कम ही बनाना आप। तो मैंने यहाँ 3 बनाए हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस देर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड जिसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलते हैं। लेट ई पी इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके, अब क्या होगा? देखो, यहाँ से ये पूरा रीजन डी है, ये रीजन टी है। तो यहाँ से हम कौन सी इलेक्ट्रिकल फील्ड भेज रहे हैं? E0। इस रीजन पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन सी है? E0। लेकिन जैसे वो डाइलेक्ट्रिक में अंदर एंटर करेगी तो उसको अपोज करने के लिए EP आ जाएगी, क्योंकि EP का आंसर डाइलेक्ट्रिक के अंदर ही है। तो यहाँ पे रीजन पे तो आपकी E0 ही चलेगी, लेकिन जैसे ही डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो एंटर करेगी तो EP उसको अपोज करेगी। तो यहाँ से E0 जा रही है और यहाँ से EP आ रही है, और EP का मैग्नीट्यूड जो है वो इन चार्जेस पे डिपेंड करता है, और इन चार्जेस की वैल्यू बहुत कम होती है। तो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है कि E0 का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज ग्रेटर देन EP का मैग्नीट्यूड। तो E0 जो है वहाँ पे, यहाँ से मान लो 10 जा रही है, और EP जो है वो इसका मैग्नीट्यूड E0 से कम ही होगा डाइलेक्ट्रिक में, और कंडक्टर में कैसा होता है? सेम होता है। तो मान लो EP की वैल्यू है 6, तो जैसे ही E0 डाइलेक्ट्रिक के अंदर जाएगी तो 10 को 6 अपोज करेगा। ठीक है, यानी कि E0 को EP अपोज करेगा। तो मेरे पास यहाँ पे E0 की स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहेगी जितनी यहाँ है, क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 - 6, सो विल गेट 4। तो आप जब डाइलेक्ट्रिक के अंदर जाओगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ना E0 होगी ना EP होगी। कितनी बचेगी? E लिखा मैंने, इट इज इक्वल टू E0 - EP। स्लैब के अंदर इतनी आएगी। फिर आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो यहाँ अपोज करने वाला कोई नहीं है, तो इस रीजन में फिर से क्या आ जाएगी? E0 आ जाएगी। ठीक है, तो आपने दो चीज़ें बिल्कुल ध्यान से रखनी है कि इन रीजन्स पे इलेक्ट्रिकल फील्ड E0 है, और इस रीजन पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी है? E, विच इज इक्वल टू E0 - EP। तो E जो है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? T में, और ये जो रीजन बच गया वो, उस रीजन को हम क्या करेंगे? D में से T को माइनस कर दो। हमें ये रीजन देखना है, छोटे से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड E0 है, तो आपने इस पूरे D में से T को माइनस करोगे, देन यू विल गेट वैल्यूज ऑफ दिस, यहाँ की और यहाँ की। तो यहाँ पे
यानी कि डी माइनस टी रीजन जो होगा, टी रीजन में कौन सी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ई, और डी माइनस टी रीजन में कौन सी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ई नॉट। क्लियर? तो हमने क्या किया, नाउ इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन वी सी दैट द इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इंड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, ओके, विच ट्राई टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ ई नॉट। ऑब्वियसली बात है, रिड्यूस करेगी ई नॉट की स्ट्रेंथ को, बट कहाँ, ओनली इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, बाहर नहीं करेगी। यहाँ पे तो ई नॉट ही रहेगी। डाइलेक्ट्रिक के अंदर जब वो जाने की ट्राई करेगी तो वो उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस करती है, ओके। सो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक द इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। सपोज इन दिस केस यू हैव गिवन अ कंडक्टर, अगर आपको यहाँ कंडक्टर दिया होता तो आपको पता है यहाँ पे ई नॉट चलती, यहाँ पे ई पी आती, बट कंडक्टर में ई नॉट और ई पी बोथ आर इक्वल, तो यहाँ पे जो मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड होती वो जीरो होती। तो आपके पास सिर्फ कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड बचती, डी माइनस टी रीजन में, यहाँ पे और यहाँ पे डी माइनस टी में आपकी ई इलेक्ट्रिकल फील्ड बचती सिर्फ, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इतनी बची। सो इन रीजन टी, टी रीजन में यू हैव ई इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इन डी माइनस टी रीजन यू हैव इलेक्ट्रिकल फील्ड ई नॉट, ठीक है। वहां पे क्या है, मेरे पास ई नॉट है। अब आपने क्या चीज करना है, आप ये निकाल रहे हैं क्योंकि ये तो सेम, ये पोटेंशियल निकालना है, तो वी नोट दैट ई इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, और हम इसको ई इज इक्वल टू वी बाई डी भी लिखते हैं, ये वी बाय आर भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिखा v इज इक्वल टू ई इंटू डी, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं e इज इक्वल टू डी वी बाय, ठीक है, या सिंपल लिख रही हूँ मैं v बाय डी, v बाय डी भी लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ से मैंने लिखा v इज इक्वल टू ई इंटू डी, आर यहाँ पे मैंने डिस्टेंस शो किया, तो यहाँ पे d को मैंने डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। तो e इज इक्वल टू वी बाई डी आता है, यहाँ से v इज इक्वल टू ई इंटू डी बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो आपने क्या चीज़ निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है v, कहाँ पे, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब निकालने पर हमने क्या चीज़ देखी, द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इस फॉर्मूले से v इज इक्वल टू, अब आपको पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड दो है, इतने से रीजन में कौन सी है, ई नॉट है, और इतने से रीजन में क्या है, ई है। तो हमें दो पार्ट्स लेने पड़ेंगे, तो टोटल वैल्यू निकालनी है। तो हमने देखा यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, ई नॉट इतने और इतने रीजन में कौन सी है, ई नॉट। सो ई नॉट डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे है, डी माइनस टी में, ठीक है, डी माइनस टी में वी हैव ई नॉट प्लस ई, ई कौन से रीजन में है, टी वाले में, ई इंटू टी, ठीक है। सो फॉर्मूला मैंने दो पार्ट्स में लगाया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो अलग अलग इलेक्ट्रिकल फील्ड है, टी रीजन में वी हैव ई एंड टी माइनस टी में कौन सी है मेरे पास, ई नॉट, ओके। So dielectric constant we have already studied in the previous lectures that the dielectric constant is represented by K. Okay. So the formula of K is equal to E naught by E, where E naught is the total electrical field and E is the reduced value of electrical field. That is reduced कितनी बच जाती है, यहाँ से E is equal to E naught by K. So put the value of E in this equation. ठीक है, then you will get, यहाँ मैंने इक्वेट किया तो आपके पास आएगा v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी, ओके। हम क्या चीज़ निकाल रहे हैं, कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए, ठीक है। कैपेसिटेंस के लिए चार्ज हमें पता है और v हम निकाल रहे हैं, यहाँ से मैंने ई नॉट कॉमन ले लिया, देन यू हैव दिस वैल्यू, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 आपको पता है इक्वेशन नंबर 2 में इलेक्ट्रिकल फील्ड है इन चार्जेस की वजह से, तो जब एयर रख रहे हैं तभी भी इसमें 4 चार्जेस हैं, और जब हम इसमें क्या डाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं, तो चार्जेस सेम रहने हैं। तो इन्हीं चार्जेस की वजह से ई नॉट है, तो ई नॉट तो सेम ही रहेगी। तो आपने ई नॉट की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, देन यू विल राइट दिस, पुट द वैल्यू ऑफ ई नॉट क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट एंड दिस, ठीक है। नाउ द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, वी हैव फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, ठीक है। सो इन दिस केस द चार्ज रिमेन सेम, जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं तो चार्ज तो सेम ही रह रहा है, क्यू रहेगा। याद रखना इनिशियल केस में हमने चार्ज क्यू कंसीडर किया है, कैपिटल क्यू, तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे तभी भी क्या रहेगा, कैपिटल क्यू ही रहेगा। और ये वी, तो हमें पता है ये तो सेम ही है, हम वी निकाल रहे थे तो वी मेरे पास ही आ गया, क्यू एज इट इज, पुट द वैल्यू ऑफ वी, ठीक है। सो यहाँ से मेरे पास क्यू
और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वी हैव दिस। ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ न्यू कैपेसिटेंस। ठीक है, ये नई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। और ये कौन सी है? जब हम एयर डालते हैं तो ये कैपेसिटेंस होती है, और जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तो नई कैपेसिटेंस ये बनती है। अब हमें नहीं पता लग रहा है कि इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, तो हमें क्या करना है? नई कैपेसिटेंस का कंपैरिजन करना है पुरानी कैपेसिटेंस के साथ। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ कैपेसिटेंस है और ये एयर के साथ कैपेसिटेंस है। तो आप सिंपली क्या करोगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दो। ठीक है, जब मैं इस नई कैपेसिटेंस को पुरानी कैपेसिटेंस के साथ डिवाइड करूंगी तो आपने सिर्फ वैल्यूज डालनी है, डिवाइड करना है। तो आप देखोगे एप्सिलॉन नॉट ए और एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल आउट हो जाएगा, देन यू हैव डी अपॉन दिस वैल्यू। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा। अब देखो ध्यान से, ऊपर डी है, नीचे डी में से कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है न्यूमिनेटर जो होगा वो ग्रेटर है, डिनोमिनेटर कैसा स्मॉलर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका डी में से कुछ नंबर माइनस हो रहा है। ऊपर डी है, नीचे डी में से ही कुछ नंबर माइनस हो रहा है, तो डी में से अगर कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है ये नंबर जो है इससे छोटा हो जाएगा। इफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर एंड डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, देन यू विल सी, ठीक है, ये बड़ा ये छोटा, तो आपको पता है इसके रेशो का आंसर इज ग्रेटर देन 1। अगर न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आंसर लेस देन 1 होता है। ठीक है, और ये बड़ा है ये छोटा, तो ऑब्वियसली बात है इसकी रेशो जो है वो ग्रेटर देन 1 ही आएगी। ठीक है, ग्रेटर देन 1 आ गई। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये इसके इक्वल है। इफ दिस इज ग्रेटर देन 1 देन सी बाय सी नॉट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, then C is greater than C naught. C is the new capacitance when we are introducing a dielectric slab, and C naught is the initial capacitance when we have a free space in between the plates of the capacitor. ठीक है, then we see that when we introduce a dielectric slab, then the capacitance of the capacitor इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। तो आपकी 3 आती है, आपको पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। तो 3 चीज़ों से कैपेसिटेंस इफेक्ट करती है। इफ़ यू चेंज द एरिया, इफ़ यू चेंज द सेपरेशन, एंड इफ़ यू इंट्रोड्यूस एनी डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, तो अगर आप ये 3 चीज़ें करोगे तो कैपेसिटेंस जो है वो चेंज हो जाती है। ओके, क्लियर। तो अब नेक्स्ट पार्ट है सब केस। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली थी जिसकी थिकनेस टी थी, तो यहाँ थोड़ा सा गैप बच रहा था। तो अब क्या होगा इसका सब केस, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालूँ जिसकी थिकनेस डी के बराबर ही हो, तो जैसे ये बनाया, ये प्लेट, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब पिंक पेन से जो मैंने बनाया, और लेट इसकी थिकनेस जो डी के बराबर है, तो अगर बिल्कुल उसको उसके साथ पैक कर दो आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो क्या होगा, if the thickness of dielectric slab is equal to the plate separation then T become equal to D। ठीक है, तो हमने बताना है तो कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो इनिशियल कैपेसिटेंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, इनिशियल सॉरी फाइनल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये है और इनिशियल कैपेसिटेंस ये है। तो हम देखेंगे अब क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने ये नई कैपेसिटेंस ले ली, यहाँ पे मैंने टी की जगह डी पुट कर देना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, ये है मेरे पास, यहाँ पे मैंने टी की जगह प्लेट सेपरेशन डी है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ वैल्यू डाल दी। ठीक है, ये न्यू कैपेसिटेंस है और इनिशियल कैपेसिटेंस के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो यहाँ पे तो पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी मर्जी है, इधर यू कैन चेंज डी बाई टी। ठीक है, बट इफ़ यू आर चेंजिंग इन इक्वेशन नंबर 1 इन दिस इक्वेशन डी बाई टी, तो सेकंड में भी आपको डी को ही चेंज करना है, ये नहीं एक में आप डी को चेंज कर रहे हो और एक में टी को चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे अगर आपने, आपकी मर्जी है, यहाँ पे मैंने क्या चीज़ चेंज की है, टी को डी से रिप्लेस किया है। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे डी को टी से भी रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन अगर आप यहाँ पे डी को टी से रिप्लेस करते हो तो सेकंड में भी डी को टी से ही रिप्लेस करना था। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ही है, तो यहाँ पे मैंने टी को चेंज किया, यहाँ टी है ही नहीं। ठीक है, ये सेकंड आ गया। अब कंपैरिजन करना है, इसको फिर से इसके साथ डिवाइड करो, तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ से मैंने वैल्यू पुट की और ये यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगी तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे डी बाई टी एप्सिलॉन नॉट ए बाय दिस, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, डी अपॉन डी इंटू के, अगेन दिस विल कैंसिल आउट, देन यू हैव C by C naught is equal to K and C is equal to K of C naught। ठीक है, it is very important कि when we introduce a dielectric slab, ठीक है, of thickness, ठीक है, equal to the plate separation,
देन द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज ही करती है। देखो के टाइम्स है तो बड़ी ही होगी, इंक्रीज करेगी, पर कितने टाइम इंक्रीज करेगी? के टाइम। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू थी के, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की। तो बोलते हैं अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते हैं जिसकी थिकनेस प्लेट की सेपरेशन के बराबर ही हो, तो बोला जो नई कैपेसिटेंस है वो जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स जो है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो के टाइम्स जो इंक्रीज कर जाएगी, ये याद रखना। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और सी नॉट क्या है? इनिशियल कैपेसिटेंस। ओके।